the very first speaker of our session, who is none other than CA Shruti Agarwal. Shruti Agarwal has cleared all its level of chartered accountancy in its very first go, with 63% in CA final examination and 4 exemption, and with an enriching experience of articleship from BDO LLP in investment banking, and post that she has joined Anand Rathi in banking profile. Sorry, she has also cleared her CFA level 1 in February 23 with 90 plus percentile, which is a dream score to any CFA aspirant. She has cleared her CA intermediate examination and scored exemption in 7 out of 8 subjects. Her hobbies does include travel, uh, reading various types of books, and she is kind of a versatile, dynamic personality to have with us. I welcome and thank Shruti Agarwal to be with us. Thank you. Excited Now, for this session. we too, ma'am, we are really excited for the same. Now, the very next speaker is someone that I feel needs no or a very little introduction. The Sava and Shukar girl, Ria Patni. CA Ria Patni has cleared her CA final examination in November 24 and has cleared all its level in its very first go. With her dynamic experience of articleship and industrial training from KPMG and Nomura Bank, respectively, Ria have had an enriching experience of auditing and equity research. Not only she has cleared all the levels of chartered accountancy, but her career also has a degree called CFA, wherein she scored 90 plus percentile in its level 1. Having a YouTube channel with almost 3K followers, Ria is guiding students to ace their exams with all the strategies and confidence. Honored with Miss RVG title in 2023, Ria is also a passionate speaker, mesmerizing poet, and a national level table tennis player. We are honored to have you on board for the session, Ria. Thank you. Thank you so much. It's my pleasure. And not just this, we also have CA Raghav Boop with us, working with have actually worked with KPMG India and now currently working with NAV India. Raghav Boop is again guiding students throughout their CA journey, an excellent speaker and a great orator and a great friend to be in. We welcome you, Raghav, to the session as well. Thank you, Chandan. सो नाउ लेट्स बिगिन. अभी फॉर्मेलिटीज खत्म करके सीधे सीधे एकदम जड़ पे आता है. फॉर समवन लाइक मी, जिसको आईबीएस का आई भी नहीं पता, व्हाट एग्जैक्टली इज आईबीएस, एंड आई मीन लाइक कैसे इस सब्जेक्ट को अप्रोच करूं, व्हाट शुड बी माय अप्रोच, एंड दिस आई वांट बोथ ऑफ यू टू आंसर दिस क्वेश्चन, बिगिनिंग विथ श्रुति. यस श्रुति. So yes, hello everybody. So let's begin with IBS ka preparation. So let's divide it into three parts: during lectures, during study leaves, and before during the exam. How should the approach be? So lectures के टाइम पे तो honestly सोचा भी नहीं था IBS के तरफ. Only हमारे लिए 5 सब्जेक्ट थे, वैसे ही सोच के किया था. फिर रिविजन्स की बारी आई, तो रिविजन्स में बिफोर स्टार्टिंग माय रिविजन आई हैड अप्रोच्ड अ सीनियर. उनसे पूछा था May 24 में जिन्होंने क्लियर किया था कि हाउ शुड आई अप्रोच इट. तो वेरी क्लियरली स्टेटेड कि पहले पहले दो फर्स्ट या सेकंड रिवीजन में डोंट इवन थिंक अबाउट इट. ड्यूरिंग लास्ट रिवीजन जस्ट थिंक कि मतलब 1-2 दिन देना है एंड में, एंड उसमें अच्छे से प्रिपेयर करना है. तो आई वॉज वेरी रिलैक्स्ड बट एट द सेम टाइम. सो ड्यूरिंग रिविजन व्हाट वी एक्चुअली डू इज हम बफर डेज देते हैं आफ्टर एवरी रिविजन. सो मैंने बफर डेज नहीं दिए थे, मैंने उसको आईबीएस के नाम से दे दिया था कि ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आईबीएस बफर डेज में ले लेंगे, बट आई विल प्रिपेयर आईबीएस. बिकॉज मैं ऐसी नहीं हूँ कि ठीक है आईबीएस को पूरा ही छोड़ देंगे, बट एक्चुअल में ऐसे ही हुआ था. तो मैंने हर रिवीजन के बाद 3-3 दिन का आईबीएस को स्लॉट दिया था. बट फर्स्ट और सेकंड रिवीजन में तो कुछ भी नहीं हो पाया था, तो वो बफर डेज में चले गए थे. So during my last revision, I gave almost 2 to 2.5 days for IBS, and I think it is more than enough. So how should you do in those two and 2.5 days में? What should you prepare actually? सबसे पहले तो मटेरियल कंपाइल कर लेना चाहिए, सारे इंडेक्सेस एक जगह कंपाइल करके रख देना चाहिए. व्हाट रियली हेल्प मी वाज कि मैंने सारे इंडेक्सेस को एक स्पाइरल बाइंड में कर दिया था. सो ऑल द सब्जेक्ट्स के इंडेक्सेस वर विथ मी इन वन स्पाइरल बाइंड. सो जो भी मेरे को रेफरेंस के लिए चाहिए था, एंड उसमें भी स्टिकी नोट्स लगा के सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लो उसको अच्छे से. एंड इंडेक्सेस शुड इंक्लूड मॉड्यूल के इंडेक्सेस, योर क्वेश्चन बैंक के इंडेक्सेस, योर कॉन्सेप्ट बुक के इंडेक्सेस, एनीथिंग एंड एवरीथिंग. So what I think is
बेटर एन oops देन अ व्हाट इफ. सो रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि मैं मटेरियल नहीं लेकर गई. जो है जितना है सब उठा के लेके जाओ. स्टडी सेंटर पे 1-1.5 घंटा पहले पहुंचना है, पहले पहुंचो, जो करना है करो. यू शुड गिव इट योर ऑल. तो जितना मटेरियल है, आई तो ब्रॉट ऑल द मटेरियल्स. मतलब मैंने जो हैंड रिटन नोट्स थी मैं वो भी लेकर गई थी कि जस्ट इन केस कुछ काम आ गया तो. So that was my approach for the subject, preparation wise, compiling the books wise. उसके बाद I think for how to approach the exam in those 4.5 4 hours 15 minutes. So 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम था उसमें द फर्स्ट थिंग यू डू इज एकदम स्किम थ्रू कर लो कि कंपाइलर जो होता है, देयर आर 2 कंपाइलर्स इन द मार्केट. आई थिंक एवरीबॉडी नोज. रोहित चिप्पर का है एंड अजय अग्रवाल का है. Whatever feels good to you, you should go ahead with it. I went ahead with Rohit Chipper's material. So Rohit Chipper के material में what I found was better than the other material was कि उसमें the topic wise index was also there. So along with subject and chapter there was a topic wise index. So that really helped me कि मैं अगर question पढ़ रही हूँ मेरे को समझ गया कि ठीक है ये ITC का टॉपिक है, ITC का ये वाला टॉपिक है. तो मैं रोहित चिप्पर के मटेरियल में देख ली कि अच्छा ITC ये वाले क्वेश्चन में भी है, तो इफ द सेम क्वेश्चन इज रिपीटेड आई कैन गेट इट इजीली. बट ठीक है, स्टार्टिंग के आई थिंक 5 to 7 minutes में you should skim through the questions and see if the same question is there or not. And once you conclude there are very thin chances कि ये सेम आएगा, because November 24 में देख लिया ऐसा कुछ सेम केस स्टडी रिपीट होने के तो बहुत कम चांसेस है. सो बट ठीक है, why take chances? वो थिन चांस को भी एक बार स्किम थ्रू कर लेना चाहिए फटाफट. एंड एक बार वो हो गया सॉर्ट कि ठीक है कोई केस स्टडी तो रिपीट नहीं हुई है, देन व्हाट यू शुड डू इज एक बार सब्जेक्ट लिख लो कि क्वेश्चन के सामने कि कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस है. एंड माय अप्रोच व्हाइल सिलेक्टिंग द क्वेश्चन वाज कि डीटी को अवॉइड करना है क्योंकि डीटी के क्वेश्चंस आर एवरी टाइम न्यू, सो सेम होने के चांसेस बहुत डिफिकल्ट होंगे. आई रियली लाइक AFM. तो AFM के क्वेश्चंस आई नो कि अगर वो आ गए तो मैं अच्छे से सॉल्व कर पाऊंगी. तो AFM वाज समथिंग आई चूज्ड फ्रॉम कि ठीक है इसमें AFM दिख रहा है. ऑडिट इज समथिंग which is actually beneficial in IBS क्योंकि आपको सेम टू सेम से छापना है अगर आपको दिख गया है तो. Audit is something you should select while selecting the questions. So that is how you should approach while selecting the questions in those 15 minutes. And you have to solve 4 case studies. And also keep in mind, first question is not compulsory in IBS, which something not many people know of. So this is very important. कि first question compulsory नहीं है. You can solve any 4 questions out of 5. So that is something you should keep in mind. And हर एक क्वेश्चन को 50 मिनट्स मतलब कीप योर टाइमर कि 45 to 50 मिनट्स में सॉल्व करना ही है. हार्ड स्टॉप 1 hour. 1 घंटे के ऊपर अगर तुमको लग भी रहा है कि मेरा हो जाएगा लिख के, स्टॉप इट देयर एंड देयर एंड मूव टुवर्ड सेकंड केस स्टडी. ट्रस्ट मी, एंड में टाइम नहीं बचता है, बहुत पैनिक हो जाता है एंड में. एंड एक क्वेश्चन जो सबको ही होता है कि अगर मेरे को सेम क्वेश्चन दिख रहा है तो मैं छापू पूरा, मतलब अगर 2 पेज का क्वेश्चन है तो शुड आई राइट थ्रू एंड थ्रू पूरा कि या शॉर्ट करके लिख लूं या खुद के मन से लिख लूं, कैसा होता है. सो इफ यू कैन सी तुम्हारे सामने है, तुम्हारे बुक सामने दिख रही है, तुम छाप सकते हो, डू इट, बट वेरी वेरी स्ट्रेटेजिकली, वेरी वेरी स्मार्टली. फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट पैराग्राफ सेम लिखो, बीच का तुम अपने मन से जहां जहां तुमको लग रहा है कट शॉर्ट करते जाओ, बट यू हैव टू सॉल्व योर केस स्टडी विद इन 1 hour. दिस इज समथिंग which I messed up in my like first 2 case studies. I messed it up, इसलिए मेरे को end time में I really was short of time and मेरा कुछ 7 to 8 marks का पेपर छूट गया था, which I regretted later. So that is something one of the mistakes which I made, and I really want everybody else to have your time in your mind and in front of you and just hard stop. तुमको दिख रहा है कि नहीं हो जाएगा बट नहीं होगा, तुमको पता है, एंड में जाके पैनिक करोगे. So it's just leave the space ना, तुम 2 पेज छोड़ दो, एंड में टाइम बचेगा, continue writing. So that is something I followed. Also while searching for the answers I followed folding the pages. तो suppose मेरे को एक केस स्टडी के क्वेश्चंस मिल गए तो मैं फोल्ड करते गई और बुक्स को साइड में रखते गई. सो दैट वे जब मैं आंसर्स ढूंढ रही थी, मुझे फटाफट मेरे को जो फोल्डेड पेपर था मैंने खोला और लिखना चालू कर दिया. दैट इज समथिंग आई थिंक रिया विल ऐड ऑन इट. Yeah, so after this superb strategy, just for a beginner point of view, if I want to portray ki IBS exactly kaisa hota hai, so it is nothing but a combination of your 5 subjects which you will be appearing plus your law and costing जो आपके फॉर्म में आप देते हो. So this is what IBS is, nothing more, nothing less. बस इसका पेपर पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है जिसमें आपके 40 मार्क्स के MCQs कवर हो जाएंगे और 60 मार्क्स का थ्योरी होता है. So the strategy which she said is just fabulous. I have followed the similar strategy, but एक चेंज था मेरे इसमें. What I did was कि मैंने अपने सेकंड रिविजन एंड थर्ड रिविजन के बीच में 2 दिन का गैप लिया था. वो 2 दिन के गैप में I dedicated for
IBS स्पेसिफिकली, और उस 2 दिन में मैंने और कुछ नहीं किया. आई जस्ट सॉर्टेड आउट कि मुझे कौन से मटेरियल लेके जाने हैं और उनको क्या क्या प्रिंट करवाना है, वट एवर, उसकी अगर कुछ एनोटेशंस करने हो वो सब करना, वो सारी चीजें मैंने बस वो 2 दिन दे दिए, ताकि मेरे 2 रिविजन के बीच में मुझे थोड़ा सा ब्रेक भी मिल गया एंड IBS की प्रिपरेशन भी हो गई, ताकि आपको मन को सेटिस्फैक्शन रहे कि हाँ यार 6 सब्जेक्ट को भी आप कम से कम थोड़ी इज्जत दे रहे हो, इफ आई पुट इट दैट वे. So yeah, more or less that way only. Baki, I think paper solving strategy and all will go on as we move in the session. Okay, I think excellent background for someone like me who have never appeared for IBS. What is cleared, मतलब जितना मुझे आपके बातों से समझ में आया कि I should be focusing on 5 subjects, of course, law and costing being the other 2. और मैं जितना अच्छा उन सब्जेक्ट्स में करूंगा, जितने मेरे नोट्स अच्छे होंगे, जितना मेरा इंडेक्स अच्छा होगा, सो नेचुरली और सबकॉन्शियसली IBS विल गेट प्रिपेयर्ड इटसेल्फ, राइट. और फिर लास्ट में 2 या 3 दिन अलग से निकाल के, इफ आई सम अप द एंटायर थिंग, I'm very good to go for exams, correct? Yeah. Okay, excellent. Raghav, if you want to add any point from May 24's, your experience, anything apart from what Shruti and Riya have added? I think one thing I specifically say again and again, which already Shruti and Riya said, was to get every possible material you have to the exam center, irrespective of कितने suitcases भर रहे हैं. 2 सूट एक राउंड में लेके जाओ. अगर 4th फ्लोर 5th फ्लोर पे भी क्लास है तो 5 राउंड लगा लो, पर जितना भी मटेरियल है सारा लेके जाना है, जिसमें हैंड रिटन नोट्स, कंसेप्ट बुक्स तो आएंगी ही आएंगी. उसके अलावा ICI का पूरा मटेरियल जो आपने कभी भी नहीं देखा तो भी आएगा. is something I specifically focus on again and again, because May 24 में almost 60% पेपर ऐसा था जो कहीं ना कहीं मॉड्यूल की वैल्यूज को बदल के या 2 क्वेश्चंस को मिला के था. However, November 24 में थोड़ा एनालिटिकल एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा था, जहाँ पे डायरेक्ट ना मिलके आपको थोड़ा कंसेप्ट ही लगाना था उसमें बैठ के, आपको समझ आता है तो आप लगाओ. तो फ्रॉम May 24, आई थिंक ऑल द November 24 पीपल व्हाट वेंट रॉन्ग वाज दे वर ऑल इन द परसेप्शन कि हमें मटेरियल मिल ही जाएगा. तो लोगों ने एक घंटा सिर्फ ढूंढने में लगाया ओवर एंड अबव कि हम अटेम्प्ट करें पेपर को, कि खुद से ट्राई तो करें, हमने पढ़े तो हैं ही सब्जेक्ट्स. सो दैट इज व्हाट वेंट रॉन्ग. सो taking learnings from both the cases, which was a little easy going for May 24 and on the tougher side for November 24, I think you have to carry all possible material to the exam center. Now, one thing that I would specifically want Riya and Shruti to answer is a very common doubt, which is 5 subjects we know we will be able to do. How to deal with costing and law? How much to do costing and law? How many specific days to be allocated? Is it even required? What can be a possible strategy to deal with both these subjects? Because 99% students in IBS are suffering from this problem. To law or costing, कैसे deal करें? So if Shruti and Riya can help. Can I take it? Yeah, you ठीक है. Alright. So अगर मैं self paced की बात करूँ, so what I did was during my preparation time, obviously जब पढ़ा था तब पढ़ा था, ठीक है. Everybody knows, आगे का याद रहता है, पीछे का सब भूल जाते हैं अपन. सो मैंने क्या किया था कि जो आपका 5th पेपर होता है, IDT का पेपर देके आने के बाद से लेकर IBS का पेपर जब तक होता है, उसमें आई डेडिकेटेड वो जो एक दिन पूरा होता है ना, वो मैंने डेडिकेट कर दिया स्पॉम को लेकर कि चलो एटलीस्ट मुझे कॉस्टिंग के मॉड्यूल में पता होना चाहिए कि डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग है तो इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं, बिकॉज आई थिंक कॉस्टिंग का इंडेक्स इज नॉट दैट होलसम. तो कहीं ना कहीं थोड़ा इशू आ सकता है. हालांकि कॉस्टिंग का जो जितना भी एटलीस्ट फ्रॉम द November 24 पेपर का एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूँ, तो कॉस्टिंग के क्वेश्चंस वेर कंपैरेटिवली इजियर देन एनी अदर सब्जेक्ट, बिकॉज आपके जो इलस्ट्रेशंस है, आपके जो टेस्ट और नॉलेज है, मोर और लेस, बिकॉज सीआर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपको किसी कॉन्सेप्ट के थ्रू बस एक फॉर्मूला तक पहुंचना होगा, और एट द एंड इट विल बी द एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला ओनली. तो चाहे वो सेल्स वेरिएंस का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से उठ के आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, आपको बस उस 4 hour 15 minutes में ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वो किस चैप्टर से कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है. वंस यू डू दैट, यू जस्ट नीड टू स्किम थ्रू द चैप्टर, आइडेंटिफाई कि ठीक है मैं जो टॉपिक सोच रही थी वो यहाँ पे है, उसके आसपास के इलस्ट्रेशन थोड़े स्किम थ्रू कर लो, एंड देन ट्रस्ट मी, मोर और लेस उस पैटर्न्स में क्वेश्चन होते हैं. अगर नहीं भी हो तो भी यू कैन टेक अ फ्यू मिनट्स, सी द फॉर्मूला, ट्राई कि वो फॉर्मूला को मैं ये क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रही हूँ क्या, इज दैट मेकिंग एनी सेंस, एंड गो अहेड विद सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस. सो कॉस्टिंग शुड नॉट बी एन इशू, एटलीस्ट फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका प्रैक्टिकल एंगल थोड़ा कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है. लॉ के लिए अगर मैं बोलूँ, लॉ में भी इट गोज द सेम वे. There are multiple books available in the market with multiple indexes respective to those books. But at the end, I was someone who always preferred ICI study material only, at least specifically for theory subjects. क्योंकि होता यह है कि theory questions में वो यार ज्यादा घुमा नहीं सकते. ज्यादा से ज्यादा आपको वो एक केस सिनेरियो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस आइडेंटिफाई करने लगा देंगे कि
किस चीज से रिलेट हो रहा है या ये किस तरफ लेके जाना चाह रहा है क्वेश्चन को. और उसमें भी मोर और लेस क्वेश्चन में शायद मेंशन होगा कि विद रेफरेंस टू या अकॉर्डिंग टू फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013 इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी. सो योर क्वेश्चन विल बी गाइडिंग यू थ्रू द चैप्टर्स. आपको बस वो चैप्टर्स अगेन स्किम थ्रू करने हैं, आइडेंटिफाई करना है. एंड लॉ तो इज वेरी सिंपल यार. क्या होगा, कैसे वाले क्वेश्चंस होंगे, कुछ कंडीशंस पूछ लेंगे, या अगर मान लो कुछ एफडीआई रिलेटेड कुछ कंडीशंस दी हुई है, वो कंडीशन से रिलेटेड एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे. आपको बस उस टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है. एज इट इज वो टेक्स्ट जो होगा, जो थ्योरी बेस होगा, वो पेस्ट करना है. एंड उसके बस ऑब्वियसली आप जब लिख रहे हो तो आप पढ़ते पढ़ते लिखोगे, तो आपको धीरे धीरे वो चीज अपने आप समझ भी आ जाएगी. एंड अगर लॉ का क्वेश्चन भी विद प्रैक्टिकल एंगल है, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. इट इज नॉट दैट बिग ऑफ एन इशू. द इशू विल बी लाइक श्रुति सेड ओनली इन टैक्सेशन, क्योंकि वहां पर उनके पास में दे हैव huge number of questions available for taxation and taxation changes. So अगर आपके पास बुक हो भी तो भी it's not that easy कि आप वो प्रोविजन को इतने जल्दी अप्लाई करके उसको सॉल्व कर पाओगे. एंड अगर आप सॉल्व भी कर लो, the probability of it being right is comparatively lower. Because what I have seen through my answer sheets also is कि जो questions theory के थे, जो directly मैंने chapters में से छापे हैं, may it be audit, law, IDT का theory, anything, वो questions में 4 out of 5, 4.5 out of 5, 5 on 5 मिलने की भी probability बहुत होती है, rather than AFM, DT, वो वाले questions. So yeah, SPOM should be doable. उस पे ज्यादा स्ट्रेस मत लेना. 1.5 डे में comparatively थोड़ा ज्यादा फोकस कर देना SPOM की तरफ, because the 5 subjects have already been dealt in the last 10 days. So that is what I followed and I would recommend as well, because it worked out for me. Perfect. I think if you want to add anything, sorry, Raghav. Yes. yeah, just a little bit to ask Riya, which was a question that was asked again and again. So law समझ आता है because law theory है, तो अगर हम नहीं भी पढ़ते हैं law को, तो हम index proper कर लें law का, तो हम जैसे in according to as per this what should be that, as per SEBI act, तो हम लोग SEBI चैप्टर में जाके उस पर्टिकुलर को इंडेक्स के थ्रू देख सकते हैं. However, for costing you are saying क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अगर हम थोड़ा बहुत बना सकें तो बना लेंगे. द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, मतलब अगर हमने कॉस्टिंग सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ जो हमने ऑनलाइन मॉड्यूल्स दिए हैं वो तो कैसे ना कैसे निकल गए हैं सबके. तो अब ऑन ग्राउंड रियलिटी में जब हम लोग कॉस्टिंग की बात करते हैं, लॉ आई थिंक थियरी की वजह से वी हैव एन एडवांटेज ऑफ गोइंग थ्रू द टॉपिक्स. कॉस्टिंग में हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कितना पढ़ें, या हमने कभी पढ़ा नहीं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, पर फिर भी एग्जाम में आ रहा है, तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बना पाते हैं कॉस्टिंग के? इज व्हाट इज माय क्वेश्चन. ओके, सो कॉस्टिंग में सिंपल एज दैट, एक बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ. आई वाज समवन जिसने स्पॉम में भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को छुआ भी नहीं था. आई डिड नॉट डू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एट ऑल. बट एक जनरल परसेप्शन आपका होता है, जब आपने वो सब्जेक्ट को एक बार भी क्यों ना गो थ्रू किया हो ना, तो आपको एक रफली आइडिया आ जाता है कि यार हाँ, ये कॉस्टिंग से रिलेट करता है. एंड इट्स जस्ट द मैटर ऑफ फैक्ट कि आपको चैप्टर आइडेंटिफाई कर लो. जैसे ही आप चैप्टर आइडेंटिफाई कर लेते हो, सी कॉस्टिंग की मॉड्यूल्स आर बहुत छोटी, आपको पूरा पूरा चैप्टर पूरे क्वेश्चंस भी गो थ्रू करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. एंड अगर आपको उस सिमिलर लाइंस में क्वेश्चन मिल जाता है, फिर तो कुछ भी नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे इसमें एक वाज आई थिंक लेबर एफिशिएंसी रिलेटेड एक क्वेश्चन था. एज इट इज क्वेश्चन, काइंड ऑफ एज इट इज क्वेश्चन था एक इलस्ट्रेशन में, बट उसके अंदर एक ट्रिकी चीज डाली हुई थी. सो अब मैं अगर ये भी देखती हूँ, अगर 1 सेकेंड 5 मिनट इन्वेस्ट कर मैं अगर ये भी समझ लेती हूँ कि इस क्वेश्चन को किस बेसिस पे सॉल्व किया हुआ है, तो आई कैन डू दैट rather than investing like 2 to 3 hours beforehand and then understanding how to learn that chapter. Might as well give it a benefit of doubt, invest 5 minutes and try replicating it in some way or the other and getting through the question, because trust me, उतना ज्यादा weightage नहीं है and it's not worth the efforts that you will put. अगर अलग से पढ़ते हो, वहां पे at the spot questions manageable हो जाते हैं. Yeah, great, excellent. I think I was having a conversation with one of the November 24 cleared student. So there, I think correct me if I'm wrong, Riya and Shruti. शायद AFM का एक क्वेश्चन था, कुछ तो था, तो उस इंसान ने क्या किया था कि वो एग्जैक्ट फिगर डाल दिए थे उसमें, मतलब आपके मॉड्यूल से ही कोई क्वेश्चन था और उसका एकदम फिगर निकाल दिए थे. आई एम नॉट श्योर इफ ही वाज करेक्ट और रॉन्ग, बट हाँ मतलब सो व्हाट वी कैन मेक आउट इज यू डोंट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद SPOM सब्जेक्ट्स. as mentioned by Riya, if you go through once, you'll get a good idea कि हाँ भाई ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से पर्टेनिंग है, ये लेबर एफिशिएंसी का क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन मैंने कहीं पे देखा है एंड आई विल एबल टू फिगर इट आउट. करेक्ट, perfect. Yeah, I think one of the most asked question, which of course our mentees have asked, which is in regards to direct text. Obviously you people have touched upon that point to skip the question if it is pertains to direct text and go for the next best alternative. I think I want to ask this question to Shruti. Shruti, should we go through the entire direct text module of ICAI for this thing, for this paper 6,
रीजन बिंग कि यू नो आईसीआई अभी बोलते हैं ना घुस घुस के पूछ रहे हैं, स्पेशली डीटी में। तो ये आप क्या एडवाइस करोगे, स्पेशली वो लोग जो 90% ऐसे होते हैं जो कॉम्पैक्ट कंपाइलर ही रेफर करते हैं या अदर सच बुक्स रेफर करते हैं फॉर डायरेक्ट टेक्स्ट कंसीडरिंग इट्स थिकनेस? यस श्रुति। Yeah. सो आई ऑनेस्टली मैंने तो 4 मॉड्यूल्स थी डायरेक्ट टैक्सी, मैंने एक भी बार हाथ भी नहीं लगाई थी। मैंने डायरेक्ट उसको आईबीएस के वक्त उसका वो जो अपना कवर होता है ना, वो ऐसा निकाला था आईबीएस के लिए कि भाई सूटकेस में रखना है उसको। बस मैंने जो भी था, मैंने टीचर का कॉन्सेप्ट बुक और कंपाइलर जो क्वेश्चन बैंक था, मैंने वही रेफर किया था। एंड आई थिंक मतलब 70-80% 85% कवरेज बहुत अच्छा होता है। एंड ट्रस्ट मी, डीटी इतना वास्ट है, तुम वो 85 भी अगर बहुत अच्छे से कर लोगे ना, वो ही मोर देन इनफ है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम मॉड्यूल 1.5 डेज में कवर करने चाहोगे। नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल। सो तो जो हमारे कॉन्सेप्ट बुक्स है, तो कॉन्सेप्ट बुक एंड डीटी में भी व्हाट आई डिड वाज कॉन्सेप्ट बुक बहुत अच्छे से करना, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते डीटी में, एवरीबडी नोज इट। सो इफ यू हैव अ वेरी गुड हैंड ऑन द क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बुक एंड इफ यू नो कि भाई ठीक है ये प्रोविजन ऐसे अप्लाई होता है, आई थिंक यू विल बी सॉर्टेड। डजंट मैटर तुम कौन सी बुक यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, योर कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। दैट एंड पॉइंट इज दैट। Just to add on to that, I was also someone who used concept and compiler only. How this will help, अब अगर मैं इसमें जस्टिफाई करने जाऊँ कि लाइक शी ऑल्सो सेड, मैंने भी सेम किया था कि प्लास्टिक उसी दिन हटाया आईबीएस के पेपर वाले दिन। तो बट नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल विल से कि यार जब ये बुक खोली नहीं है तो ये कैसे यूज करोगे। नाउ वन थिंग विच हेल्प मी अ लॉट वाज कि बिकॉज आई वाज थरो विद द कॉन्सेप्ट बुक, मैंने जो क्वेश्चन आया आई न्यू, माई इंस्टिंक्ट न्यू कि ये कॉन्सेप्ट बुक में ये वाला प्रोविजन यहाँ पर है। बट लाइक ऑल ऑफ यू माइट नो कि कॉन्सेप्ट बुक में आपको प्रोविजन समझाने के तरीके से लिखा हुआ होता है। यू माइट नॉट बी एबल टू पुट इट इनटू वर्ड्स दैट वेल, एंड 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए शायद उतना लिखना इनफ ना हो। सो व्हाट यू कैन डू इज कि आपको पता है आपके कॉन्सेप्ट बुक में ये कौन से चैप्टर में कहाँ पे प्लेस्ड है, रफली कौन से चैप्टर में प्लेस्ड है। यू कैन मार्क अ लिंकिंग कि आपके कॉन्सेप्ट बुक के चैप्टर्स एंड आपके मॉड्यूल के चैप्टर्स किस में क्या इंक्लूड हो रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, सो आई थिंक बेप्स या सम अदर चैप्टर, फॉर एग्जाम्पल लाइक वीडीए, ऐसे सारे चैप्टर्स मॉड्यूल में शायद किसी दूसरे चैप्टर के अंदर मर्ज्ड हो। बस ये चीज की अंडरस्टैंडिंग ले लेना कि कौन सा चैप्टर कहाँ मैप हो रहा है, एंड देन जस्ट गो टू दैट चैप्टर और वहां से वो थ्योरी छाप लो जो आपको शायद सजेस्टेड आंसर से मैच करवा के दे देगी आंसर। बिकॉज कॉन्सेप्ट बुक का आंसर आई डोंट थिंक इज इनफ to fetch you that marks. Although your conclusion will be correct, you might explain it well, but see yaar, this is an open book exam. They expect you, trust me, they expect you to write as is. तो उस चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जैसे श्रुति ने बोला, फर्स्ट एंड लास्ट पैरा एटलीस्ट ट्राई कि वो जितना मैच हो सके उतना मैच होए। बीच में इंपॉर्टेंट जो लग रहा है जिससे आपका मैटर ऑफ द आंसर नहीं हिल रहा है, उतना कम से कम लिख लो एंड गेट डन विद इट। ओवर राइटिंग भी मत करना, कम भी मत करना। सो आई थिंक दिस मैपिंग हेल्प्ड मी एटलीस्ट फॉर डीटी अ लॉट। So one point that we'd want to highlight is, आप जब अपनी बुक्स लेके जा रहे हो ना, make sure that all of your material has the subject name and the module number written तीनों तरफ से। So if अगर आपकी बुक ऐसी है FR की, तो यहाँ पे भी FR1, यहाँ पे भी FR1 एंड पीछे की साइड से भी FR1 लिखा होना चाहिए क्लियर कट, ताकि इफ एट ऑल अगर आप गड़बड़ में बुक इधर उधर भी रख दो, आप इधर से भी बुक हो आपको वो दिख जाए। बिकॉज सी इस साइड पे बाइंडेड साइड पे तो ऑलरेडी आईसीआई ने लिख के दिया है, करेक्ट। सो इट्स नॉट एन इशू। पर अगर कोई और साइड से फेस होता है तो इट विल हेल्प यू अ लॉट टू सेव टाइम थोड़ा सा भी। बिकॉज सी यार ये ऐसा पेपर है ना जिसमें आप लिखते लिखते इतना टाइम का ट्रैक भूल जाते हो कि इवन द मिनट्स मैटर, वेरी फ्यू मिनट्स विल आल्सो मैटर अ लॉट इन दिस। सो दिस इज वन पॉइंट व्हिच वी वुड लाइक टू हाईलाइट स्पेसिफिकली। दूसरा एक और चीज कि जो आप किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट कहाँ रखने वाले हो ना, ये चीज एक बार थोड़ी डिसाइड कर लेना ताकि आपका माइंड प्रिपेयर हो जाए कहाँ पे हाथ डालना। एग्जैक्टली। जब सॉल्व, आई थिंक 30 केस स्टडीज कुछ मैंने सॉल्व की थी, तो उसके वक्त ही मैंने एकदम एक डिसाइडेड पैटर्न था कि यहाँ मेरा एफआर रहेगा, यहाँ मेरा एएफएम रहेगा, यहाँ ऑडिट रहेगा या टैक्स रहेगा। एंड द सेम वे आई अरेंज्ड इट इन द सेंटर आल्सो। सेंटर पे जल्दी पहुंचना, गेट सेंटर वालों से बात कर लेना कि भाई झगड़ लेना कि भाई हमको एक्स्ट्रा डेस्क बेंच चाहिए तो चाहिए ही, गेट इट डन पहले ही, आईडीटी के बाद ही गेट दोस थिंग्स डन। सेंटर से टॉक, नेगोशिएट, टॉक, व्हाटएवर यू हैव टू डू प्लस। बट जो आपको डेस्क बेंच चाहिए एक्स्ट्रा, गेट इट डन। नहीं भी मिल रहा है, पैनिक नहीं करना है, बुक्स तो हमारे पास ही है, सिर्फ थोड़ा टाइम जाएगा ढूंढने में, ढूंढ लेंगे। बट वो चक्कर में बुक्स कम लेके जाना इज नॉट अ सोल्यूशन। To help you arrange this better in exam, what I did was I took 6 carry bags और मैंने हर कैरी बैग पे सब्जेक्ट का नाम लिख दिया था एंड उन कैरी बैग्स में वो सब्जेक्ट की बुक्स डाल दी थी। मैंने बस एग्जाम सेंटर पे जाके मेरे बैग में से वो एक कैरी बैग उठाई, कैरी बैग में से बुक्स निकाले एंड जहां जहां मैंने डेडिकेट कर रखा था वहां वो चीजें रख दी,
एंड हमारे केस में तो इट वाज सिंपल बिकॉज माय पेरेंट्स वर अलाउड टू कम इन, तो Yeah, माय even मॉम हमारे केस में पेरेंट्स अलाउड, सो अगर पेरेंट्स अलाउड है, टेक देम विथ यू, दे विल हेल्प यू आउट भाई, और तुमको जितनी हेल्प लगेंगी, जितने सूटकेसेस वगैरह कैरी करने के लिए, जितने लोग ले जा सकते ले जाओ, बिकॉज ये सब्जेक्ट में तुम पढ़ाई सच कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, तो ये सब प्लानिंग अगर कर लिए ना, तो Administration चीजें ज्यादा है। तो दैट विल हेल्प यू, मतलब ऑर्गेनाइज रहने में सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन इज द स्किल देयर. What was the other thing? Ravi, could you just repeat your question? Index. Regarding the index. Thank you. Yeah. Okay. So Ravi asked a question to us ki, do we need to make our own index or do we need to carry available index which is already available in the market? So the one thing that you can do is take the available index that is in the market and customize it for your help. So what I also did was कि जो मेरा एग्जाम से आने के बाद का टाइम था ना, एंड इनफैक्ट द 1.5 पे ऑल्सो जो 2 दिन मैंने पहले डेडिकेट करे हुए थे ना, उसमें भी व्हाट आई डिड वाज मैंने इंडेक्स एक बार पढ़ लिया और पढ़कर उसमें से वो चीजें हाईलाइट कर दी विच मेक्स द क्वेश्चन डिफरेंट, नॉट व्हाट इज आर, व्हाट एम वेयर वगैरह, वो सारी चीजें नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऑडिट में पूछ रहे कि आप, आएगा नहीं ऐसा क्वेश्चन, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि स्कूल को ऑडिट कैसे करते हैं ना. हर क्वेश्चन में आपको स्कूल नहीं आएगा, हर क्वेश्चन में आपको हाउ विल वी कंडक्ट ऑडिट, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे, स्कूल हर इसमें नहीं आएगा. हाईलाइट द वर्ड स्कूल. या फॉर एग्जांपल आपका इंडेक्स है, इंडेक्स में कैसे क्वेश्चंस आपके किसी या तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहेंगे या किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज रहेंगे. मैंने वो इंडेक्स के बाजू में ही लिख लिया था कि ये क्वेश्चन है, ये कौन से ऐसे से पर्टेन करता है, कौन से स्टैंडर्ड से आता है. बिकॉज सी वी हैव स्टडीड ऑल द 5 सब्जेक्ट्स, विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन से स्टैंडर्ड्स है. बट अगर आपको मान लो अल्फाबेटिकली वो चीज नहीं मिलती है, सो यू कैन थिंक थ्रू, यू कैन आइडेंटिफाई कि हाँ ये ऐसे 299 से, यू कैन साइड में आप देख सकते हो आपने 299 कहाँ लिखा हुआ है ऑडिट में. जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन की यार थोड़ी भी सिमिलैरिटी है क्या, एटलीस्ट इसका इंट्रो पार्ट में कॉपी कर सकती हूँ क्या, वो चीजें भी अगर आप देख लो ना, सो इट विल हेल्प. सो दिस इज हाउ यू कैन कस्टमाइज योर इंडेक्स एंड विदाउट एनी फेल इंडेक्स पढ़ के जाना. एग्जाम के 1.5 डे में इंडेक्स पढ़ के जाना, वो चाहे वो जो 100 केस स्टडीज अवेलेबल है मार्केट में उसका इंडेक्स हो या कोई भी इंडेक्स हो, इंडेक्स पढ़े बिना मत जाना. बिकॉज आपके दिमाग में फ्रेश रहेगा अगर इंडेक्स, तो आपको केस स्टडी के क्वेश्चंस पढ़ते से ही आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये कहीं ना कहीं कवर्ड है या नहीं, इसको मैं बड़े वाले मेरे केस स्टडी बंच में कंपाइलर में ढूंढने की मेहनत करूँ भी या नहीं. इससे एक और चीज मुझको ये याद आई कि केस स्टडी पढ़ने मत बैठना 15 मिनट्स में बिल्कुल भी, डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चंस पढ़ने हैं आपको. और एक चीज, लोग क्या करते हैं कि सारे क्वेश्चंस के एमसीक्यूज पहले सॉल्व कर लिए, प्लीज नहीं, एक केस स्टडी उठाओ और उसको पूरा सॉल्व करके गेट डन एंड डस्टेड विद इट. Suppose a student is only appearing for the group 2 and is having his IPS paper as well. So, to how much extent would you suggest that we should cover up the group 1 subjects? So it goes without saying कि DT IDT में आप 1.5 डे में बिल्कुल भी टाइम एलोकेट नहीं करोगे. No ways you can do that. The best thing that you can do is AFM में it's quite famous now कि एक faculty की concept book है which is quite short, quite crisp. Buy that, print it out, carry that, go through it. 1.5 day में या if at all you can manage, you know, you'll have to invest like I think a week at least, exactly a week at least, जिसमें आप at least वो AFM की उनकी concept book हो जाए, उससे थोड़ा acquaint कर लो खुद को कि आप identify कर सको कि ये question किस chapter से आ रहा है. Chapter identify करना in itself is enough, and then carry those material with you. More or less, see, group 1 is more practical oriented, right? FR and AFM both. FR थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा अगर आपने कवर नहीं किया हुआ है तो, अगर उसका प्रैक्टिकल आ जाता है तो. बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज FR इज इक्वल वेटेज ऑफ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, एटलीस्ट इन IBS आई वुड से. सो द थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू आई फील यू शुड बी गुड टू गो. अगर आपने एक बार सिर्फ गो थ्रू भी कर लिया है तो इवन इन दैट 1 वीक कि आप समझ पा रहे हो कि ये रेवेन्यू से डील कर रहा है इंडेस या ये यू नो रिलेटेड पार्टी से पूछ रहा है. क्योंकि FR में अगर थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है तो सी आपका फर्स्ट वाला पैरा जो होगा वो तो इंडियस एक्सप्लेन करने में ही चला जाएगा. या दिस इंडियस इफ इट्स डीलिंग विद रिलेटेड पार्टी, सो इंडियस 24 डील्स विद सो एंड सो, उसका रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन एक्सप्लेन कर लिया. सो you'll have to answer it very smartly, thinking कि जिसने वो चैप्टर किया होगा वो कैसे इसको अप्रोच करेगा. थोड़े से एफर्ट ज्यादा लगेंगे, नो डाउट, बट गिवन इट्स ओपन बुक, टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट, कैरी ऑल द मटेरियल दैट यू हैव. आपके पास नहीं होगा, कोई ऐसा फ्रेंड है आपका जो यू नो सिर्फ ग्रुप 1 जा रहा है और उसके तो ऑब्वियसली आपके IBS के पेपर तक पेपर्स खत्म हो गए रहेंगे, उसके बुक्स लेके जानी है, उसके बुक्स लेके जाओ, आई डोंट केयर, कैरी ऑल दैट यू कैन, डू नॉट लीव एनी रिग्रेट बिहाइंड, जस्ट लाइक श्रुति सेड. सो या प्रैक्टिकल के लिए आई थिंक फॉर्मूला से गो थ्रू करना थोड़ा जरूरी हो जाता है. FR माइट गेट ट्रिकी फॉर यू, अगर उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है तो ट्राई स्किपिंग इट एंड इंस्टेड ट्राई की जैसे हम लोगों ने सजेस्ट किया था DT स्किप करना. I think DT might not be the best option for you to skip because that is what you will be best at comparatively as compared to FR at least. So
prefer theory over practical when it comes to at least group 1 subjects is what I think Yeah. should be able to. I cannot express how much grateful I am to Shruti Agarwal ma'am and Riya Patni ma'am for taking out that big bunch of time out of your busy schedule. And frankly, this could have been a very generalized session where you would be just answering your generalized queries and solving those generalized doubts. But the way you detailed everything, which makes it even more valuable for students to understand from their perspective, that was a bang on thing to do that. And I'm really thank you for you two to coming to this session and maybe sharing your insightful guidance with our students. Thank you so much both of you. And तो ये वीडियो हम यहीं पे, मतलब ये सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. आई होप आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिली होगी इस सेशन से. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कनेक्टिंग दिस. एंड ऐसे सेशंस हम हर वीकेंड पे सोच रहे करने का, बहुत अलग अलग डाइवर्सिफाइड स्पीकर्स के साथ, बहुत अलग अलग गाइडेंस के साथ, बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ के साथ. तो ये वीडियो के कमेंट में आप लिख दीजिएगा आपको नेक्स्ट ये कौन से सेशन पे, कौन से टॉपिक पे आपको ये वीडियो चाहिए, ताकि हम उस टॉपिक के लिए जो बेस्ट हमारे पास स्पीकर्स हो सकते हैं, बेस्ट पॉसिबल स्पीकर्स हो सकते हैं, वो आपके लिए हम लेके आए और उस टॉपिक पे बहुत अच्छे से डिटेल चर्चा करें, ऐसे ही जैसे लाइव सेशन में हम कर रहे हैं. सो बस इस कमेंट को लाइक कर दीजिएगा. अगर पसंद आया तो प्लीज दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा. कमेंट में लिख दीजिएगा हम सीए बनेंगे, ताकि जो भी ये वीडियो देखे उसको मोटिवेशन आ जाए कि वो भी सीए बनेगा. इस बार ऑडिट में एग्जामिनेशन पार, बस दुआ में याद रखना. थैंक यू, बाय बाय. Just forgot to mention, so sorry. So guys, you can definitely follow Riya Patni ma'am on her Shukar and Sabar channel. उसकी लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं. अभी जितना डिटेल में उन्होंने बताया, वैसे ही हर एक सब्जेक्ट के लिए उन्होंने स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी अपलोड कर दिया. एंड बहुत सारे वीडियोस उनके चैनल पे आते रहते हैं, स्ट्रैटेजीज, गाइडेंस, मेंटोरशिप. सो ये सारी चीज़ों के लिए आप उनका चैनल फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी. सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड वी विल जस्ट क्लोज दिस वेबिनार नाउ. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन. थैंक यू, बाय बाय.